Good morning, students. How are you all? I hope that you all are fine and doing good at your home. So, welcome back to your science class. Okay, so in our science class, we are reading our chapter number 9, that is living organisms and their surroundings. Until now, we have studied about terrestrial habitat. कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में डिफरेंट डिफरेंट कौन से हैबिटेट आते हैं एंड व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स live in this habitat. So today we will start aquatic habitat. It is given on page number 132. So an aquatic habitat is a habitat that is located in a water body. Water bodies में like rivers, ponds, sea, oceans, इन जगह पे जो habitat located होता है that is known as aquatic habitat. There are three types of aquatic habitats, and if we talk about its types, then we have three types. The first is ponds and lakes, coasts and oceans. So let's just study about this one by one. So first we will start with ponds and lakes. Nehar, Jheel. Water bodies such as rivers, lakes, ponds and streams are freshwater habitats. They contain fresh water which has a low concentration of salts. ओके सो हमारा जो अर्थ है वो उसका थर्ड फोर्थ एरिया हमारा वाटर से कवर है. अब उस थर्ड फोर्थ एरिया में से जो मोस्टली वाटर है वो हमें ओशियन से मिलता है, जिसमें बहुत सारी अमाउंट में सॉल्ट होता है और जिसे हम सॉल्टी वाटर भी बोलते हैं. बट इफ़ वी टॉक अबाउट पॉन्ड्स एंड लेक्स, सो पॉन्ड्स एंड लेक्स में फ्रेश वाटर होता है. फ्रेश वाटर मीन्स जिसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन मीन्स अमाउंट वो कम होती है. सो पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स में जो वाटर होता है वो फ्रेश वाटर होता है. दैट मीन्स कि उसमें सॉल्ट का अमाउंट कम होता है. सेकेंड, oceans. Oceans and seas which cover 3/4 of the earth's surface constitute the marine habitat. Marine habitat होता है salty. ऐसा हैबिटेट जिसमें वाटर तो है बट उसमें सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, दैट इज़ नोन एज सॉल्टी या फिर मरीन हैबिटेट. एनिमल्स एंड प्लांट्स इन सच हैबिटेट्स हैव अडेप्टेड देयर बॉडीज टू डील विद फैक्टर्स सच एज फोर्सफुल वाटर करेंट्स, कोल्ड वाटर टेम्परेचर्स एंड हाई लेवल ऑफ सॉल्ट. और ऐसे जो सीज और ओशन में जो एनिमल्स एंड प्लांट्स रहते हैं उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से वो पानी की तेज़ लहरों को, वहाँ के ठंडे टेम्परेचर और हाई लेवल ऑफ सॉल्ट, इन सब को डील कर लेता है. And the third and last one is coast. As I have already told you that coast is the region where land and sea meets. The coast is made up of region where land meets the sea. Like जो beachy areas होते हैं वहाँ पे sea भी होता है और land area भी होता है. So that is known as coast. It includes beaches. इसमें beaches आ जाते हैं, estuaries आ जाते हैं, mangroves and marshlands. Estuaries वो area होता है जहाँ पे जो tide meets the stream. That means stream होता है बहाव, पानी का जो बहाव होता है, और टाइड्स होती है लहर, जहाँ पे लहरें जो लहरें होती हैं पानी की वो नदी के या फिर सी के बहाव के साथ जब मिल जाती हैं, दैट इज़ नोन एज एस्चुरीज. लेट सपोज कि ये हमारी सी है, सी की ये स्ट्रीम है वो इस साइड बह रही है और ये टाइड्स हैं. ये जो टाइड्स इन लहरों के साथ मिलती है यहाँ पे हमारी ये एस्चुरीज होती हैं. मैनग्रोव्स ऐसे एरियाज़ होते हैं, मेनली ये वेट एरियाज़ में पाए जाते हैं, और ऑल्सो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स ग्राउंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. एंड मार्शलैंड्स हम कह सकते हैं ये भी हमारे वेट एरियाज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं. The water here has more salt than fresh water but not as much as sea water. और यहाँ पे salt की concentration ponds and lakes से ज़्यादा होती है पर ocean से कम होती है. So basically if we talk about the amount or concentration of salts, then we can say सबसे ज़्यादा salt ocean में होता है, then coast में, and then in ponds and lakes. So this was about the aquatic habitat. Now we will study about plant life in aquatic habitats. So plants that grow in water are of different types. So basically we have three different types of plants. Okay, some plants float on water. The first type is ऐसे plants जो कि water पे float यानी तैरते हैं. Second, some are partially submerged. Submerged means underwater. ऐसे plants जो आधे पानी के अंदर होते हैं और आधे पानी के ऊपर होते हैं. And the third is
some others are fully submerged in water, जो कि completely under water present होते हैं. So we have three types. What are those three types? जो पानी पे float करते हैं, जो आधे पानी के अंदर होते हैं और जो पूरे ही पानी के अंदर होते हैं. The most important adaptation in aquatic plants is the air spaces in the leaves, stems and roots. These air-filled channels allow the exchange of gases between different parts of the plant. They also help the plant to remain upright in water or stay afloat. And the main adaptation in aquatic plant is that कि उनके जो leaves, stem और roots होते हैं उनमें air spaces होते हैं. Air spaces और we can say pores होते हैं. इन pores की वजह से वो gases का भी exchange करते हैं plus water को भी अपनी body के अंदर ले सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं. और इसकी हेल्प से वो अपनी एक अपराइट दैट मीन्स स्ट्रेट पोजीशन में अपने आप को प्लांट रख पाता है. जस्ट लाइक हम बलून में वाटर डाल के उसे फिल करते हैं, ऐसे ही ये लीव, स्टेम एंड रूट्स में जब इनमें पानी भर जाता है तो इनका वेट थोड़ा हैवी हो जाता है और ये फिर एक जगह स्ट्रेट टिक पाते हैं. सो नाउ वी विल स्टडी ये जो थ्री टाइप्स थे इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट वन इज जो कि पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं. उसके एग्जाम्पल है डकवीड, वाटर हाइसिंथ, पिस्टिया. दीज थ्री आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द plants which float on water. As you can also see here, this is water hyacinth. ये फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, क्योंकि ये फ्लोट करते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स, जो ग्रो कहाँ करती हैं, पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स में. वाटर हाइसिंथ हैज़ थिक ग्लॉसी लीव्स विद फजी फ्री हैंगिंग रूट्स. इनकी जो लीव्स होती है वो थिक और ग्लॉसी होती है, मीन्स मोटी और शाइनी होती है. और जो इनकी रूट्स होती है वो फ्रिजी मीन्स थोड़ी रफ सी होती है, रफ और फ्री हैंगिंग होती है. दैट मीन्स इनके रूट्स, फ्री हैंगिंग मीन्स कि इनके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल से अटैच नहीं होते. ये भी अपने फ्लावर के साथ इनकी रूट्स भी फ्लोट करती हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. Then we have phytoplankton. Phytoplankton are microscopic plants that drift on the surface of oceans which are brightly lit by the sun. They are the most basic food available for all the sea organisms. Okay, so phytoplanktons क्या होते हैं? आपने मोस्टली देखा होगा कि जो सी होती है या फिर लेक्स होते हैं उसके ऊपर ग्रीन कलर के छोटे छोटे से लाइक पार्टिकल्स होते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के होते हैं. आप उसे ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हो. तो ये जो बिल्कुल ही इनकी सरफेस पे जो ग्रीन ग्रीन से पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं. और ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ये फूड होते हैं फॉर ऑल द सी ऑर्गेनिजम्स. जितने भी ऑर्गेनिजम्स सी में रहते हैं उन वो क्या ईट करते हैं, वो इस फाइटोप्लैंक्टन को ही ईट करते हैं. नेक्स्ट, सो दिस वॉज अबाउट जो वाटर पे फ्लोट करते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट दोज प्लांट्स जो कि आधे पानी के अंदर होते हैं और आधे पानी के बाहर. पार्शली सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स आर रूटेड टू द सॉइल. इनकी जो रूट्स होती हैं वो इनकी तरह सरफेस पे फ्लोट नहीं करती, बल्कि इनकी रूट सॉइल से अटैच्ड होती है. इनकी रूट सॉइल से अटैच्ड होती है, पर इनका जो फ्लावर और लीफ होता है वो पानी पे फ्लोट करता है. जस्ट लाइक दिस हम ये देख सकते हैं, ये वाटर सरफेस है एंड दिस इज सी सरफेस. तो इनकी जो रूट्स है, सॉरी ये जो स्टेम है और ये जो रूट्स हैं ये यहाँ पे अटैच्ड है, बट यहाँ पे जो ये फ्लावर है और जो इनकी लीव्स हैं वो क्या है, वो पानी पे फ्लोट करती हैं, जैसे लोटस एंड वाटर लिली. इट इज़ ऑल्सो मैंशन कि इनकी रूट सॉइल से अटैच्ड होती है और इनके जो लीव्स और फ्लावर्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं. इन ऑर्डर टू कैप्चर एज मच सनलाइट एज पॉसिबल for photosynthesis, such aquatic plants have large floating leaves and also इनकी जो leaves होती है वो बहुत बड़ी होती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकें. The cells containing chlorophyll are concentrated near the surface of leaves. They also have a waxy coating making them waterproof. और इनके पास एक waxy coating होती है जिसकी वजह से ये waterproof होते हैं. That means excess water इनकी leaves या फिर flower के ऊपर नहीं रहता, वो नीचे गिर जाता है. Water lily and lotus are partially submerged aquatic plants. और partially submerged aquatic plants के example है water lily और lotus, और ये भी ponds and lakes में पाए जाते हैं. So the third part is ऐसे plant जो कि अंडर वाटर रहते हैं, एंड द एग्जाम्पल इज हाइड्रेला. हाइड्रेला एग्जाम्पल है ऐसे एक्वेटिक प्लांट का जो कि कम्प्लीटली अंडर वाटर रहता है. ये जो प्लांट्स रहते हैं इनकी रूट्स
इनकी रूट्स भी सॉइल से अटैच्ड होती है एंड ऑल्सो ये हमारे पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स में पाए जाते हैं. प्लांट्स हैव थिन रिबन लाइक लीव्स सो दैट वाटर फ्लोज पास्ट विदाउट डैमेजिंग देम. और ये क्योंकि पानी के अंदर रहते हैं, इनकी एडेप्टेशंस ऐसी होती हैं कि वाटर से इनको कुछ एक्सेस वाटर से इन प्लांट को, इन लीव्स को कोई डैमेज नहीं होता. एंड द लास्ट वन इज अदर देन दीज थ्री वी हैव अनदर दैट इज मैनग्रोव, जो मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था. मैनग्रोव्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स ग्राउंड के ऊपर होते हैं. ये ऐसे श्रब्स होते हैं जो कि एक तो मडी एरियाज में पाए जाते हैं, वेट एरियाज में पाए जाते हैं, मेनली ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं. एंड ऑल्सो इनके जो रूट्स हैं वो ग्राउंड के ऊपर होते हैं और ऐसे होते हैं, यस, ग्राउंड से ऊपर होते हैं और ऐसे ये डिज़ाइंड होते हैं, ऐसे ये एडेप्टेड होते हैं कि ये जो तेज़ लहरें होती हैं सी वेव्स की, उनको ईजिली फेस करती हैं. उन सी वेव्स से ये टूटती नहीं है या फिर डैमेज नहीं होती. वो उन्हें वो उनका उनके साथ डील बहुत अच्छे से करती हैं. ऐसी एडेप्टेशंस इनकी हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लांट लाइफ एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एनिमल लाइफ. सो and thus we know many animals like who live in water, like we can say fish, frogs, turtles, crocodiles, ducks, seagulls, terns, pelicans. All these are different animals which live in the water, right? So there is a wide variety of animals. Other than this we have shark, whales, dolphins, jellyfish, corals, sea anemones जो कि seas और oceans में रहती हैं. So now basically we will study one by one about them. Okay, so the first point is fish have streamlined bodies. Now what is streamlined? Streamlined is this shape. दिस शेप इज़ कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड. और मोस्टली फिशेस की जो बॉडी होती है वो ऐसी ही स्ट्रीमलाइंड होती है, जिसमें ये उनकी टेल होती है, ये जो इनमें विंग लाइक स्ट्रक्चर साइड में होते हैं इन्हें हम फिन्स बोलते हैं, और इनके ऊपर ये जो डिज़ाइन होते हैं दैट इज़ नोन एज स्केल्स. सो fish have streamlined bodies and fins that enable them to move quickly through water. They have special respiratory organ called gills which extract the oxygen dissolved in water. The body is covered with scales that keep them waterproof and also help them move easily in water. So टेल जो है इसकी मूवमेंट में हेल्प करती है, फिन्स भी इसको मूव करने में हेल्प करती है, और स्केल्स क्या होते हैं, स्केल्स इनके ऊपर स्केल्स लाइक जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. एंड ऑल्सो अगर हम ह्यूमन बींग्स पानी के अंदर जाते हैं तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बट ये फिशेस तो हमेशा पानी के अंदर रहती है, तो ये सांस कैसे लेती हैं? जस्ट लाइक अस, जैसे हमारे पास लंग्स हैं सांस लेने के लिए, फिशेस के पास गिल्स होती हैं. गिल्स जो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, दीज आर द गिल्स प्रेजेंट इन द फिश, और इन गिल्स की हेल्प से ही फिशेस रिस्पायर करती है, सांस लेती हैं और सांस छोड़ती हैं. Okay, so this was about fishes and now we will specifically talk about dolphins and whales. जो dolphins और whales होती है वो normally fishes से बड़ी होती हैं साइज में, तो उनके पास गिल्स नहीं होती. ओके, उनके पास गिल्स नहीं होती, बट उनके पास क्या होता है, ब्लो होल होता है. दे हैव अ ब्लो होल लोकेटेड नियर द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड. दे कम अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर एंड ब्रीथ थ्रू देयर ब्लो होल. जैसे हमारे पास नोज होती है, नोज से हम ऑक्सीजन लेते हैं. इन सिमिलरली ये जो डॉल्फिन्स और वेल्स होती है इनके पास एक होल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लो होल. ब्लो होल बोलते हैं, दिस इज ब्लो होल, और ये इसके थ्रू ये ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं. Third point, frogs. Frogs are specially adapted to live on land as well as in water. Okay, so frog एक ऐसा एनिमल है जो लैंड पे भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है. While on land, they breathe in oxygen through their lungs. So when frog जो है वो लैंड पे रहता है तो वो अपने लंग्स से रेस्पायर करता है, लाइक ऑक्सीजन लेता है. बट जब वो वाटर में होता है तो वो लंग्स से ऑक्सीजन नहीं लेता, बल्कि अपनी स्किन से ही वो ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेता है.
दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड ऑल्सो उनके जो लेग्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, दैट्स वाई फ्रॉग जंप करके मूव करते हैं, उनके लेग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड ऑल्सो वो उन स्ट्रॉन्ग लेग से वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं या फिर अपने शिकारी से बचने के लिए जल्दी जल्दी भागते हैं। एंड ऑल्सो उनकी जो फीट होती हैं वो भी वेब्ड होती हैं, वेब्ड फीट होती हैं जिनसे कि वो ईजिली स्विम कर पाते हैं वाटर में। सो फ्रॉग्स का क्या है कि वो लैंड एंड वाटर दोनों में रहता है। लैंड में जब रहता है वो लंग से ऑक्सीजन लेता है, और जब वो वाटर में होता है वो स्किन से ऑक्सीजन लेता है। एंड ऑल्सो उनकी लेग्स स्ट्रॉन्ग होती हैं जिनसे वो जंप करते हैं, अपने खाने को पकड़ते हैं और जो उनको खाने आता है उनसे बचते हैं। नेक्स्ट वाटर बर्ड्स। नाउ व्हाट आर वाटर बर्ड्स? ऐसी बर्ड्स जो वाटर में रहती हैं, दैट आर नोन एज वाटर बर्ड्स। उनके पास फेदर्स होते हैं जो कि वाटर प्रूफ होते हैं और उनकी फीट वेब्ड होती है। नाउ व्हाट इज वेब्ड फीट? एज यू कैन सी हेयर, इनकी जो फीट है, नॉर्मली फीट जो उंगलियां होती हैं वो ऐसी होती हैं, बट इनके यहाँ पे एक वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट्स वाई, जो कि इसमें भी गिवन है, दैट्स वाई दे आर नोन एज वेब्ड फीट। एंड दीज वेब्ड फीट हेल्प देम टू स्विम इनसाइड द वाटर, okay, that help them to swim. And their beaks are also shaped such that they can catch and feed on aquatic organisms such as algae, insects and fish. और इनकी जो beaks होती है, जो इनका माउथ होता है वो भी शार्प होता है ताकि वो ईजिली अपने फूड को पकड़ सके, कैच कर सके और उससे खा सके, दैट्स वाई उनकी बीक्स भी शार्प होती हैं। और ये क्या खा सकती है? ये एल्गे खा सकती हैं, इंसेक्ट्स या फिर कोई दूसरी फिश खा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सम सी एनिमल्स। अब कुछ ऐसे भी सी एनिमल्स है जैसे स्क्विड और ऑक्टोपस, इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी, दैट मीन्स इनकी बॉडी ऐसी नहीं होती, इनकी बॉडी का अलग ही स्ट्रक्चर होता है। ये रहा ऑक्टोपस। And in last we have another animals such as sea otters, whales, seals. हमारे पास कुछ ऐसे भी फिशेस हैं जिनकी बॉडी में फैट की एक लेयर होती है जिसे हम ब्लबर बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी में फैट होता है, फैट की लेयर होती है, सिमिलरली इन फिशेस की बॉडी में, इन एनिमल्स में भी फैट की लेयर होती है जिसे हम ब्लबर बोलते हैं। और ये जो ब्लबर है ये कोल्ड वाटर में इनको हीट प्रोवाइड करती हैं। सो बेसिकली ये टेम्परेचर मैनेजमेंट में ये ब्लबर इनकी हेल्प करता है। Okay, so this was all about the animal life in aquatic habitat. So this is it. Thank you.